आज का जो वीडियो है वो एक मर्सिडीज पे है जो एक रेगुलर एस क्लास है और हमने उसमें कुछ यूनिक काम किया है। एक्सटीरियर का तो किया ही है बट इंटीरियर में हमने कुछ ऐसा किया है जिसके वीडियो शायद हम सिर्फ इंडिया के बाहर के ही देखते थे। फर्स्ट टाइम ऑटो राउंडर्स में ये काम हुआ है। तो आइए देखते हैं इस गाड़ी में हमने क्या क्या काम किया है। हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑटो राउंडर्स। दिस इज सतीश मंडालिया। सो ये वाली जो मर्सिडीज की एस क्लास है वो W222 मॉडल है और हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर की ये 7th कार है। तो उनका ये था कि इसमें कुछ यूनिक करना है। सो रेगुलर W222 मॉडल को हमको मेबैक बनाना था विद ड्यूअल टोन एंड एवरीथिंग, बट पूरे जर्नी में हमको बहुत सारे डिसीजन ड्यूरिंग द वर्क लेने थे इन टर्म्स ऑफ कलर, अलॉयज, इंटीरियर। तो वो सारी चीज़ें थी, बट एट द एंड ऑल द सिलेक्शंस दैट वी हैव डन दैट हैज़ कम आउट रियली वेल। सो W222 मर्सिडीज जो है उसमें मेबैक कन्वर्जन के 2 ऑप्शन आते हैं। एक W222 मेबैक और अभी बहुत जल्द हमने सुनने आया है कि W223 मेबैक का किट भी इसका रेडी होने वाला है। एंड दीज आर द 2 ऑप्शंस, बट जनरली ये जो हमने किया ये थोड़ा एग्रेसिव लोगों को लगता है, हमें भी पर्सनली लगता है कि ये थोड़ा एग्रेसिव लुक है। एंड W223 मेबैक जो है वो थोड़ा सॉफ्ट लगता है, थोड़ा मॉडर्न डिज़ाइन लगता है, बट कस्टमर वांटेड कि थोड़ी गाड़ी एग्रेसिव लगे, थोड़ी बड़ी लगे, तो उस हिसाब से हमने ये वाली किट सिलेक्ट की। When it came to color selection, काफ़ी सारा कन्फ्यूजन था। आई थिंक हमने उनको 6 से 7 ऑप्शन दिए थे, बट वी वांटेड टू डू समथिंग विच इज़ गिवन बाय द कंपनी। कुछ अलग टोन या अलग ड्यूअल टोन हम नहीं लेना चाहते थे। हम वही चाहते थे कि जो कंपनी में मिलता हो, ताकि ये ऐसे ही लगे कि कंपनी से बनी हुई गाड़ी है। तो बहुत सारे ऑप्शंस में से उन्होंने डिसाइड किया कि एमरल्ड ग्रीन और मोजावे सिल्वर का कॉम्बिनेशन लेंगे। दैट इज़ व्हाट वी डिड। Legends ain't born, they built from the grind. From benches to banners, we sharpen the mind. We sharpen the sword and promise and swore that we going hard and leaving it all on the floor. Hey, yeah, we going hard and leaving it all on the floor. Hey, yeah, we going hard and leaving it all on the floor. Legends ain't born, they built from the grind. From benches to banners, we sharpen the mind. We sharpen the sword and promise and swore that we going hard and leaving it all on the floor. Hey, yeah, we going hard and leaving it all on the floor. बट येस, ड्यूअल टोन पेंट जॉब में बहुत डिफिकल्ट होता है गाइस, क्योंकि मैनुअल प्रोसेस है। आपको लाइन मैनुअल तरीके से बनानी है, तो उसमें एक्सपीरियंस ही काम आता है। और आप सबको पता है कि ऑटो राउंडर्स में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं जिसमें हमने ड्यूअल टोन पेंट यूज़ किया हुआ है। Also, the life of this paint will definitely be very, very good because the material that we have used is the same material what even Mercedes is using for painting their cars. Better and stronger was hurting, but that turned to something I live on for real. Y'all know the deal. Barbecue chicken when I'm in the field, when I'm on the court. It's more than a sport. I'm in for the kill and looking for souls I can steal. Breaking the rims, I feel like Shaquille. Diesel, I'm gassing, let God take the wheel. Buzzers get beaten from Brooklyn to Sweden. We overseas, always been chasing the thrill. Legends ain't born, they built from the grind. From benches to banners, we sharpen the mind. We sharpen the sword and promise and swore that we going hard and leaving it all on the floor. Hey, yeah, we going hard and leaving it all on the floor. Hey, yeah, we going hard and leaving it all on the floor. Legends ain't born, they built from the grind. From benches to banners, we sharpen the mind. We sharpen the sword and promise and swore that we going hard and leaving it all on the floor. Hey, yeah, we going hard and leaving it all on the floor. Hey, yeah, we going hard and leaving it all on the floor. Yeah, we going hard and leaving it all on the floor. Yeah, we going hard and leaving it all on the floor. Yeah, we going hard and leaving it all on the floor. Yeah, we going hard and leaving it all on the floor.
सो बाकी सब तो काम हमारा काफ़ी बढ़िया चल रहा था, बट इंटीरियर का डिस्कशन में हम बहुत कंफ्यूज थे, क्योंकि एज आई सेड कि उनकी ये 7th कार है। हमने सब गाड़ियों में जो उनका इंटीरियर किया है वो थोड़ा हटके ही किया है, बट ये वाली गाड़ी के लिए वो चाहते थे कि थोड़ा बोल्ड इंटीरियर हो, जो शायद इंडिया में जनरली लोग करते नहीं हैं। हम सब भी उसके वीडियोस देखते हैं, बट इंडिया के बाहर के देखते हैं। बट येस, कस्टमर एंड वी वर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विल डू समथिंग डिफरेंट, एंड द कलर दैट वी हैव सिलेक्टेड गाइस, इट्स अमेजिंग कलर, बहुत बढ़िया है। और ये लेदर हमारे पास था भी नहीं, ना ही इसका कैटलॉग था। स्पेशली वी गॉट दिस फॉर दिस कस्टमर एंड फॉर दिस कार, एंड वी imported this from Italy, and that color is looking amazing guys. तो इस गाड़ी का इंटीरियर आई थिंक ऑटो ओनर्स का अभी तक का बेस्ट जॉब है। इसमें आपके हिसाब से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन ऐसा है सर, इसका सबसे बड़ा तो यही है, हाँ, एक डैशबोर्ड का है। डैशबोर्ड का, ओके। क्योंकि ये पूरा अपन जेन्युइन लेदर में कर रहे हैं और पूरा इटालियन लेदर है। अपन ने लास्ट टाइम GLS में जब भी काम किया था पता चला था कि डैशबोर्ड का लेदर आर्टिफिशियल था, तो ये भी मोस्टली आर्टिफिशियल ही है। हाँ, ये मैं देख रहा हूँ, हाँ, देखो दिख रहा है। हाँ, वो नीचे से लटक भी गया और ये एकदम थिन का है, अपना जो पतला है, अपना मोटा रहेगा, तो उसको इसको फिटिंग और फिनिशिंग में अपने को ध्यान रखना है। सेम पीछे की सीट में भी उतना ही है, पूरा मोटराइज है। हाँ, और ये पूरा ये वाला आर्मरेस्ट भी पूरा मोटराइज्ड है। तो ये जितना दिखता है उतना सिंपल नहीं है, काफ़ी ट्रिकी होने वाला है। एंड दैट्स व्हाई वी वांट टू स्टार्ट दिस कार एंड वर्क ऑन दिस कार फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इसमें कोई भी हम ब्रेक नहीं ले सकते, क्योंकि ये सारी गाड़ियों में मतलब काफ़ी ट्रिकी हो जाता है। तो नाउ वी विल स्टार्ट द वर्क। सबसे पहले हम रूफ़ का जो काम है वो करने वाले हैं, क्योंकि उसका जो कर्टन है वो चेंज करना इतना इजी नहीं है, तो वो पहले हम कंप्लीट करेंगे। फिर लेदर कटिंग, स्टिचिंग, वो पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं हम लोग। ये देखिए, ये सारी चीज़ें, ये सब मैकेनिज़्म है अंदर, क्योंकि ये सब रिक्लाइनिंग सीट्स है। इवन रूफ़ में भी आप देखोगे तो इस लेवल पे खोलना पड़ता है। ये सब खोलना तो है, बट उतना ही डिफ़िकल्ट है इसको फिटिंग करना भी। तो अभी पिलर्स जो है उस पर भी वी आर डूइंग इट, सो आई विल जस्ट शो यू। सो दिस इज़ द पिलर, ये पूरा खोल के जितने पिलर्स है वो सब हम लोग ब्लैक कर रहे हैं। इसकी फिनिशिंग आप देखो एकदम प्रॉपर है, क्योंकि एक एक पीस को निकाल के किया हुआ है, निकाल के पूरा। हाँ, पूरा ऊपर से। हाँ, ये अंदर जो ओरिजिनल फॉर्म रह जाता है ना, उसका लाइफ कम होता है, वो खराब हो जाता है, फिर वापस अपना भी काम वापस। तो ये प्लास्टिक पे ऑलरेडी एक फोम लगा रहता है, वो पूरा घस के निकालना पड़ता है। उसके बाद फिर ये जो अभी आप देख रहे हैं ये कपड़ा लग रहा है, देखो वहाँ पे लगा रहा है, वो उसके बाद लगा रहा है। सो अभी हमारी S क्लास के डैशबोर्ड के और साइड पिलर के कुछ पार्ट्स रेडी हो गए हैं। नाउ दिस इज़ जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन कि S क्लास या ऐसी कोई भी प्रीमियम गाड़ी है जिसमें आप देखते हैं कि डैशबोर्ड पे पूरा लेदर जैसा होता है, बट हमने हमारे एक्सपीरियंस से देखा है कि वो लेदर नहीं होता है, वो आर्टिफिशियल लेदर होता है। जितनी भी गाड़ियों में अभी तक अपने डैशबोर्ड का काम किया, सो वो लेदर जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है, बट आपकी सीट कवर्स, डोर पैड और आर्म रेस्ट जहाँ जहाँ पे भी आप टच करते हैं वो सारे जेन्युइन लेदर होता है। सो नाउ इन ऑन दिस अर्लियर व्हाट वाज देयर वाज अ आर्टिफिशियल लेदर। तो आर्टिफिशियल लेदर थोड़ा पतला होता है, आप उसको इंस्टॉलेशन के में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, बट जेन्युइन लेदर में अगर आपको ऐसा फिनिशिंग देना है और ऐसे पूरा फिटिंग करना है तो वो एक टास्क है और बहुत टाइम लगता है गाइस। मतलब खान भाई को मालूम है कि एक गाड़ी अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो कम से कम 3-4 गाड़ी जितना काम उसमें रह जाता है, बट वी कैन नॉट इवन चार्ज सो मच, क्योंकि एट दी एंड कहीं ना कहीं वायबिलिटी भी होना चाहिए कस्टमर के लिए भी। बट फिनिशिंग आप देखिए कि ये पूरा यहाँ से है, प्लस मैं आपको थोड़ा क्लोजअप में दिखाता हूँ कि ये वाला आप देखिए, ये दिस इज साइड पिलर, स्टिचिंग से लेके एवरीथिंग इज़ ऑल परफेक्ट। So we are showing this to you in detail because we wanted to tell you कि why it takes time when you want to do something like this। थोड़ा प्रीमियम काम अगर आप कराएंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, एक एक पैनल को लेके हम लोग काम करते हैं, और ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि सुबह लिया फटाफट फिटिंग किया 2 दिन में दे दिया, वो बहुत डिफ़िकल्ट है इस टाइप की गाड़ियों में और इस टाइप की फिनिशिंग में अगर आपको काम करना है तो अभी सीट्स का काम भी चालू होगा। अभी हमारा लेदर गया है परफोरेशन के लिए, जो शायद कल या परसों आ जाएगा। देन वी विल शो यू द एंटायर लेदर जो परफोरेशन करके आया है, उसकी कटिंग का प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे, एंड आफ्टर दैट विल शो यू द इंस्टॉलेशन ऑल्सो। सो अभी जो हमारे सीट कवर्स है उसका काम चल रहा है।
एंड दिस इज़ द लेदर विच वी वेर टॉकिंग टू यू अबाउट। और ये आप देख रहे हैं पूरी मार्किंग हो रही है, और ये जो मार्किंग है वो कार की ओरिजिनल जो सीट कवर्स जो है या उसका जो ओरिजिनल फर्मा है उसके हिसाब से पूरा मार्किंग किया हुआ है। एंड ये वाला लेदर मतलब हमने फर्स्ट टाइम इंपोर्ट करवाया है खान भाई, करेक्ट? स्पेशली ये गाड़ी के लिए ही हमने किया है। तो अगर कहीं पे भी आप नापा लेदर सुनते हैं तो एक बार उनको पूछिए कि वो जेन्युइन लेदर है कि नहीं। द जेन्युइन लेदर विल लुक लाइक दिस। एंड ऑल्सो व्हेन यू इम्पोर्ट इट तो आपको एक इम्पोर्ट का प्रॉपर डॉक्यूमेंट मिलता है कि ये इम्पोर्ट हुआ है, तो आपको 100% सर्टिफाई होता है कि ये जेन्युइन लेदर है प्लस ये इम्पोर्ट किया हुआ है। और इस वाली एस क्लास का जो इंटीरियर है वो पूरा आई थिंक 90% पूरा परफोरेशन पे ही है खान भाई, करेक्ट? तो हमने भी ये प्रॉपर परफोरेशन कराया हुआ है। तो आप देखेंगे तो ये लेदर पे परफोरेशन किया हुआ है। और लोग पूछते हैं कि क्या ये डायरेक्टली बैठ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। दिस इज़, ये पीछे आप देखेंगे तो इसके अंदर फोम है। फोम की डेंसिटी एक बार फिर से बता देते हैं खान भाई, इसमें 32 डेंसिटी का फोम है। प्लस ये जो वाइट कलर का जो है ये क्या है? ये अस्तर है जो इसको प्रॉपर एकदम फिट करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। तो ये हमको डिज़ाइन के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। 3 हिस्से में ये कटा हुआ है और यहाँ से सिला हुआ है। बट फ्रंट में आप देखेंगे तो आपको कहीं पे भी स्टिचिंग नहीं दिखेगी, क्योंकि ये ऐसे ही किया है जैसे ओरिजिनल में आता है। अगर ये स्टिचेस यहाँ पे दिख जाएगी तो फिर ओरिजिनल पैटर्न कम्प्लीटली अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। सो एज ए टीम इफ़ यू सी वी आर पीपल हु आर वर्किंग ऑन दिस सिंस मोर देन आई थिंक 20 ईयर्स। 20 साल से ज़्यादा हुआ रहेगा खान भाई, उससे भी ज़्यादा रहेगा। तब जाके ये एक्सपर्टीज़ आती है। खाली एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप का प्रीमियम लेदर का अगर कहीं पे भी काम करे तो प्लीज़ थोड़ा हिस्ट्री चेक कर लीजिए कि वहाँ पे इस टाइप का काम होता है नहीं होता है, क्या क्वालिटी है, क्या कस्टमर का फीडबैक है। एंड देन यू शुड गिव सच हाई एंड कार्स एंड फॉर सच हाई एंड जॉब्स ऑल्सो। तो हम तो काफ़ी गाड़ियाँ कर चुके हैं, तो कहाँ पे अटकते हैं वो भी हमको पता है और उसका सोल्यूशन भी हम निकालते हैं। सो दिस इज़ प्योरली फॉर योर नॉलेज दैट वी वांटेड टू शो यू इन डिटेल अबाउट दिस। सो गाड़ी तो अभी हमारी ऑलमोस्ट सब रेडी हो गई थी। एंड उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो होता है मेरे हिसाब से वो अलॉय व्हील का होता है, बिकॉज गाड़ी का पूरा लुक जो है वो एक अलॉय व्हील से चेंज हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, मल्टी स्पोक आता है, डीप डिश आता है। पर्सनली मुझे जो ज़्यादा पसंद है वो ये डीप डिश अलॉयज़ है। एंड इन दिस ऑल्सो यू गेट 2 क्वालिटीज़, वन इज़ फोर्स्ड अलॉय विच इज़ एक्सपेंसिव डबल द कॉस्ट। तो हमने वही लिए हैं फोर्स्ड अलॉयज़ जो इस गाड़ी में इंस्टॉल किए हैं। तो वो फाइनली हमने डिसाइड किया एंड दैट हैज़ चेंज द कंप्लीट लुक ऑफ दिस कार। तो आइए अब देखते हैं गाड़ी पूरी बाहर से अंदर से कैसी लगती है, उसके कुछ शॉट्स देखते हैं। एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि हमने इस गाड़ी में क्या क्या काम किया है।
So now let's start with a detailed video of the work that we have done in this car. So look at this guys, मतलब I don't think कि मेरे को कुछ बोलने की भी ज़रूरत है, आपको डेफिनेटली पता चल रहा होगा कि इस गाड़ी में हमने किस लेवल का काम किया है। तो सबसे पहले तो ये W222 मॉडल को हमने W222 मेबैक में कन्वर्ट किया है। तो आगे के जितने पार्ट्स आप देख रहे हैं, ग्रिल है, बम्पर है, हेडलाइट है, ये सारे पार्ट्स हमने चेंज किए हुए हैं। उसके साथ साथ हमने इस गाड़ी को ड्यूअल टोन कलर में पेंट किया है। तो ड्यूअल टोन में जब भी आप कहीं से भी पेंट कराए, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि उसकी लाइंस जो है वो प्रॉपर हो। सेकेंडली व्हेन यू टच, आपको लाइन फील नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से देख कलर ब्रेक हुआ है, वो फील नहीं होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर काम होता है। और कंपनी में भी ऐसे ही काम होता है, एग्जैक्टली सेम वे वी हैव डन। देयर आर टू कलर्स दैट वी हैव टेकन, वन इज मोजावे सिल्वर, द अदर वन इज एमराल्ड ग्रीन। और ये दोनों कलर मर्सिडीज़ के ही कलर्स हैं और उन्होंने भी इसको मेबैक में यूज़ किया है, उसी रीज़न से हमने भी इसको यूज़ किया है। पूरी गाड़ी आप लाइन लेवल पूरा देखेंगे तो आपको एकदम ऐसे ही लगेगा कि प्रॉपर मेबैक ही है। दोनों तरफ की लाइंस जो है वो भी 100% परफेक्ट मैच हुई है। मेबैक के लोगो है, टेल लाइट्स है, पीछे का बम्पर है, ये सारी चीज़ें भी हमने इसमें चेंज की है। और जो सबसे अच्छा मुझे पर्सनली फेवरेट लगता है, अलॉय व्हील्स। इसमें जो हमने अलॉय व्हील्स डाले हैं वो भी मेबैक के ही है। एंड दिस इज़ माई फेवरेट डीप डिश अलॉयस, तो हमने ये वाले डिज़ाइन डाले हैं। एंड एज आई हैड मेंशन, दिस इज़ फोर्स्ड अलॉय व्हील्स। तो जब फोर्स्ड अलॉयज होते हैं तो वो मेटल और एल्यूमिनियम दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो ये ज़्यादा ड्यूरेबल होता है और हम हमेशा यही प्रेफर करते हैं। बट येस, दीज आर एक्सपेंसिव, तो अगर बजट नहीं है तो आप कास्ट अलॉयज भी ले सकते हैं, बट इन दैट ऑल्सो यू शुड गो विद अ गुड ब्रांड सो दैट आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमने इसमें अलॉय व्हील्स भी चेंज किए हैं, प्लस हमने कॉन्टिनेंटल के टायर भी डाले हैं। तो गाड़ी अभी बाहर से आप देखेंगे तो कोई भी नहीं बता पाएगा। आई थिंक इवन मर्सिडीज़ में भी अगर मैं भेजूंगा तो वो भी यही सोचेंगे कि ये मेबैक है। इवन few times our cars have gone also to Mercedes for the regular maintenance work or something like that, और वहाँ पे भी लोग हमारे कस्टमर को पूछते हैं कि आपने काम कहाँ किया। अब इस गाड़ी का मेन चीज़ जिसके लिए मैं आपको कह रहा था कि हमने कुछ ऐसा किया है जो आज तक ऑटो राउंडर्स में भी नहीं हुआ है और शायद इंडिया में भी ऐसा काम बहुत कम होता है। सो लेट मी शो यू द इंटीरियर। जस्ट लुक एट दिस इंटीरियर गाइस, मतलब मुझे पर्सनली इतना सही लग रहा है ना ये इंटीरियर, and I'm feeling so proud of the entire team of auto rounders that we could pull this off, and this is looking amazing guys। मतलब Mercedes जैसी गाड़ी में जिसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, पीछे की सीट्स में इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक्स है और पूरी गाड़ी को पूरा खोल के डैशबोर्ड से लेके एवरीथिंग ये करना ईजी नहीं है गाइस। एंड आई एम श्योर आप कहीं पे भी जाएंगे लोग ऐसी गाड़ियों को हाथ ही नहीं लगाते हैं, बट ऑटो राउंडर्स में वी हैव एन एक्सपर्टीज, सो वी हैव डन दिस एंड दिस लेदर इज लुकिंग amazing, exactly how the customer wanted, something bold, and it has really come out very very well। तो हमने पूरा जो इंटीरियर आप देख रहे हैं ये जेन्युइन इटालियन नापा लेदर में किया हुआ है और ये वाला लेदर हमने स्पेशली उनके लिए इंपोर्ट किया था। एंड डैशबोर्ड पे जो मर्सिडीज़ लेदर यूज़ करता है गाइस, एक्चुअली वो जेन्युइन लेदर नहीं होता है, वो आर्टिफिशियल लेदर होता है। हमने हमारी पहले की गाड़ियाँ जब की उसमें भी हमने जब वो लेदर को निकाला तब हमें पता चला कि वो आर्टिफिशियल लेदर है जो बहुत पतला होता है। तो ऐसे पतले मटेरियल के साथ आप ये सब फिनिशिंग लाना बहुत इजी होता है, बट जेन्युइन लेदर में इसको लाना बहुत मुश्किल है, बट वी हैव डन दिस। सो ये एक चीज़ है। सेकेंड, इसका जो मेबैक का स्टीयरिंग व्हील है वो भी आप देख सकते हैं, तो हमने इसमें मेबैक का स्टीयरिंग व्हील इंस्टॉल किया हुआ है और उसका लेदर जो है वो भी हमने चेंज किया हुआ है टू मैच विद द इंटीरियर। जितने भी AC वेंट्स है वो सारे हमने चेंज किए हैं विद एम्बिएंट लाइट, तो AC वेंट्स हमने चेंज किए हैं। एंड द मेन थिंग इज़ द स्क्रीन, हमने इसमें एक प्रॉपर बड़ी वाली स्क्रीन डाली है, तो उससे गाड़ी का अंदर का जो लुक है वो भी बहुत बढ़िया आ जाता है। आपको ऐसे ही लगेगा कि आप एक नई जनरेशन की गाड़ी चला रहे हैं। अगेन सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप ऐसा कुछ काम कराते हैं तो आपका थीम कहीं से भी ऑड नहीं लगना चाहिए। तो आप देखेंगे तो रूफ़ जो है वो हमने कंप्लीट ब्लैक किया हुआ है। उसका रीज़न ये है कि इसमें जो बेज कलर का रूफ़ था वो इस इंटीरियर थीम के साथ नहीं जा रहा था, तो हमने इसको ब्लैक किया है। एंड दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इंटीरियर आप जहाँ से भी बनाएं बस इतना ध्यान रखें कि कंप्लीट थीम जो है वो कहीं से भी ऑड नहीं लगे। तो ये पूरा अगर आप देखेंगे तो एकदम प्रॉपर सिंक हो रहा है, तो ये एक है। एंड देर इज़ वन मोर चैलेंज जो हमने फेस किया था इसके इंटीरियर में कि इसमें बहुत सारी जगह पे छोटे छोटे सिम्बॉल्स दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे भी स्टीयरिंग पे भी दिया हुआ है सिम्बॉल्स, यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो ये सारे सिम्बॉल्स अगर हम इसको प्रोसेस करते हैं इन द न्यू पेंट जॉब तो ये सारे मिट जाते थे, बट हमने एक बहुत अच्छे तरीके से ये काम किया हुआ है जिसमें ये सारे के सारे सिम्बॉल्स अभी भी वैसे ही हैं। इसको शायद मैं इतनी जल्दी रिवील नहीं करूँगा,
बट क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी थी गाइस, तो शायद तीसरी चौथी गाड़ी में हम कभी रिवील करें, बट इसमें जो मेहनत लगी है वो मतलब आई कांट डिस्क्राइब दैट. बहुत मेहनत लग गई गाइस, बट येस वी हैव अचीव्ड दैट. ऑल्सो यू कैन सी ऑल द हेडरेस्ट इज हैविंग दिस logo. This logo is the initials of our customer. So these are the few things where we give personal touch also. और ये आपको कहीं रेडीमेड मार्केट में नहीं मिलने वाला है, ये आपको कस्टम काम में ही मिलेगा. सो इस वाले वीडियो में तो मैं आपको नहीं पूछने वाला हूँ कि आपको हमारा काम कैसा लगा, बिकॉज रियली आई एम सो प्राउड ऑफ द एंटायर टीम दैट वी हैव डन सच अ ब्यूटीफुल जॉब. आई एम सो कॉन्फिडेंट. बट कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि वी विल ऑल्सो फील गुड दैट हम इतनी मेहनत करते हैं. और आप सब हमेशा पूछते हैं कि ऑटोराउंडर्स में टाइम क्यों लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी काम हम घाई में नहीं करते हैं, और जो काम भी करते हैं वो इस लेवल का होता है. तो ज़रूरी नहीं है कि इस लेवल का काम हम सिर्फ मर्सिडीज़ जैसी गाड़ियों में ही करें. अगर हमारे पास इनोवा भी आती है, फॉर्च्यूनर भी आती है, या क्रिस्टा हाई क्रॉस कोई भी गाड़ी आती है, हमारा फोकस यही रहता है कि हम जब काम करें तो इस लेवल का ही काम करें, ताकि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन एकदम अलग लेवल का हो. तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जब भी आप काम कराएंगे तो थोड़ा आपको टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. सो अगर आपके पास भी ऐसी कोई गाड़ी है, प्रीमियम गाड़ी है, जिसको आपको बेचना नहीं है एंड यू वांट टू मॉडिफाई इट और रिस्टोर इट, प्लीज़ कनेक्ट विद अस. वी हैव नाउ टोटल 4 वर्कशॉप. चारों वर्कशॉप्स की डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. इन केस इफ यू आर लुकिंग टू बाय अ यूज्ड कार, तो हमारे ऑटोराउंडर्स कार्स के पेज को फॉलो करिए, वहाँ पे आपको हमारा कंप्लीट कैटलॉग मिल जाएगा. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम.